I'll just give you a few conceptual questions and then we will start, okay? Just basics. अभी तक तो easy है. Nothing great. Yes, sir. Yes. All right. So let's discuss. So this is okay. See this question. Earlier, Yes, sir. what do you think is the concept? This is true, right? हाँ ये true है. ये साउथ हो जाएगा या नॉर्थ हो जाएगा? Yes. It cannot exist as a unipole. फिर से मैग्नेटी बन जाएगा तोड़ने से. Yes, sir. Now what happens to the force? हाँ जी. So this will become south pole, Yes, sir. north pole, attractive. तो D होना चाहिए. Yes. Small questions, easy ones. Next. ये E वाला होना चाहिए. Correct. North से निकलेंगे, right? Yes, sir. ठीक है. The very basic, मतलब कोई थोड़ा सा एक subtle सा reminder है. That's all. Nothing excess. ज़्यादा कुछ था नहीं. Yes, sir. Okay, I'll give you a figure and you have to tell me what's happening. अच्छा. ठीक है. You will tell me what does the figure tell you.
the question is clear. So do you have a situation? No? सर समझ नहीं आ रहा इसमें क्या एक्सप्लेन करें. So these are the domains, and domains are randomly distributed on the left, and you have done magnetization by rubbing a magnet, and domains have more or less got aligned in the same direction, resulting in the creation of a magnet. So this is likely to be a ferromagnetic material, क्योंकि इसके सारे डोमेन एक डायरेक्शन में ऑलमोस्ट लाइन हो गए हैं. अच्छा. ये रैंडमली ऑर्गेनाइज थे. हम्म. वी डिड दिस. कोई नया क्वेश्चन नहीं, हमने करा हुआ ये. क्या? यू आर रिवाइजिंग विच टॉपिक ऑफ फिजिक्स नाउअडेज? फिजिक्स में तो अभी मैं वो करंट कर रहा था. हाँ, मतलब साथ साथ जो होता है यार वो भी आना चाहिए. ये कब करोगे? फिर भूल जाओगे. यू शुड डू साइमल्टेनियस इमीडिएटली ही क्या पढ़ा था, ब्रॉड पॉइंट्स पता होने चाहिए. तो बिल्कुल ही दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डू, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस चैप्टर अगर याद नहीं कर रहे साथ साथ? ओके, एक और था हमारे पास. How do you define pole strength of a magnet? Pole strength. So the question is, how will you determine
the pole strength of a magnet, QM, if you remember. हमने Coulomb's law of magnetism पढ़ा था. F is equal to K QM1 QM2 upon R square. Right? So we did study pole strength. देखो, अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो, if you take a bar magnet, okay, so this is your north pole and this is the south pole. If you keep this bar magnet in an external magnetic field, okay, then the force which is experienced and the magnetic field which is external are linked to each other in this manner, F by B. मैंने वो जब न्यूमेरिकल करा था या थ्योरी करी थी तो मैंने बोला था वैसे तो ये forces are getting added, but why the answer is B? Then I told you because it is unipole, one unit का है, and therefore F by P comes out to be same as the magnetic field. Yes, sir. So this is the way you measure the pole strength. The pole strength is measured by F by B. And it is very similar to, if you remember, if you do this F by Q, इससे electric field निकलता था. Per unit basis, what is the force being experienced by the charge? Yes, sir. So this is the formula of, and therefore similarly the magnetic field is given by force per unit pole strength, the Newton divided by Tesla. हमने जब इक्वेटर और उसकी डेरिवेशन करी थी तो हमने फोर्सेस को जोड़ा था और लेकिन आंसर बी में निकाल दिया था. एफ एन कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, जब हम इक्वेटर पे कर रहे थे और वो कर रहे थे तो हमने उसके अंदर लिया था कि these two forces get added, but because it's a unipole, so the force is in magnitude equal to B. Okay. My suggestion is please do revise what is taught to you. You have a very strange way of working. मैं magnetic field कर रहा हूँ, तुम current कर रहे हो. Okay, so what was B axial? B axial was equal to mu naught upon 4 pi 2 mr upon r square minus L square by whole square. So this was the magnetic field of a bar magnet. On the axial line. And if you take a very short bar magnet, then R is very large as compared to B. So B equator का भी यही formula था almost, except that it is, so ये था magnetic moment. Okay, and this is m upon r square plus L square by 3 by 2 on the for a short magnet.
length of the magnet becomes very small. Yeah, approximately इसको you can put it equal to 0. So the rule will change for a short magnet. This is for a normal magnet, but if it's a short magnet, both these rules change into these. और इसी पे हमें numerical करने हैं. ठीक है But you are blank, right? You have no clue what we are doing today. तो नहीं मैं सर तो ऐसा picture देख के चला जाऊंगा. When will you learn this? हमने पढ़ाई करी हो यार, हमें पता है कैसे पढ़ते हैं. ऐसे नहीं पढ़ा जाता. जो चैप्टर चल रहा होता है उसके साथ रहना होता है और वो बिल्कुल टच में होते हैं आप. नहीं तो अगले दिन आपको कुछ आता ही कुछ नहीं है. You're blank. ये आगे पीछे का सिस्टम जो है, इट इज रॉन्ग. रिवीजन इज फाइन, लेकिन जो पिछले दिन हुआ था वो नहीं. इफ यू कम प्रिपेयर्ड, then what is that you're listening? You're just listening, right? You have no contribution, you can't answer any quiz, you can't do any question. All right. So let's do a question from NCERT, which we saw yesterday. Unsolved question tha, if you remember. So the question is, what is the magnitude of, and yahi aayega, find the magnitude of B equator. Question NCERT. Okay, if this is your B equator, you have to find, and B axial you have to find. You are given the bar magnet length is given by 5 centimeter. The distance at which you have to find this is given by 50 centimeter, and the magnetic moment M of the bar magnet is 0.40 m meter square. So you can clearly see R is very large as compared to 10 times hai. So we will use one of these rules, which is meant for a short magnet. So we are given a short magnet. बहुत छोटी length है compared to the distance at which you have to find. This is the distance at which you're supposed to find it. Now put it in formula. Mu naught 492 m by r cube. So first is B axial, B equator. Put it here. Answer. Mu naught e 10 raised to power 7 multiplied by m is 0.40, 0.5 cube. So this is 10 raised to power minus 7 into 0.4 upon 0.125, right? Tesla. Solve it, get the answer. 2. Put it in equator and then put it in axial. Mu naught upon 4 pi into 2 into 0.4 divided by r cube. 0.5 का double है, twice. Okay, that's the way you solve it. Okay. Formula की समझ होनी चाहिए. They can do variations. Okay, so what is the definition of magnetic moment of a bar magnet? Small m जो पढ़ रहे हैं हम, what exactly it is? One number question. Define the magnetic moment of a bar magnet. So we know a magnet exists as a dipole. ये तो पक्का है. South or North pole have to be together. So
today's class is useless यार. You have no idea what you're studying. ये हम कर चुके हैं in detail तो with मैंने units, डेफिनेशन याद everything. नहीं करी. वही तो वो प्रॉब्लम है यार. You don't know how to और study. इवन सर मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है उनको याद करने. नोट्स तो एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है. वीडियो रिकॉर्डेड है. What notes do you want? NCERT SL है आपके पास? यस सर. That is book of notes only. There is nothing else in that. वो तो पूरी किताब ही नोट्स की है. बहाने नहीं चलेंगे. वो तुम्हारे पास तो किसी चीज के नोट्स नहीं है. फिर डोंट स्टडी एनी टॉपिक. नहीं सर, जैसे केमिस्ट्री के मेरे पास पूरे नोट्स होते हैं. किसके? केमिस्ट्री के. हाँ, तो उसी से मांग लो यार फिजिक्स के नोट. फिर ये सब बहाने हैं यार. एनसीईआरटी में से मैं पढ़ा रहा हूँ, वहीं से याद करना है, वहीं लिखा हुआ है. नोट्स का क्या मतलब होता है? जहां पे ये समझाया हुआ है. एनसीईआरटी में समझाया हुआ है, अरोड़ा में समझाया हुआ है. सिर्फ यही रीजन है बस. या तुम्हारे पढ़ने के स्टाइल में गलती है. फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि तुम्हारे पास किसी चीज के नोट्स नहीं है. कागज के टुकड़ों से कभी फिजिक्स नहीं सीखी जाती यार. एटीट्यूड से सीखी जाती है. व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म? लिखा हुआ है सब जगह ये, एनसीईआरटी में और एसएल में. नोट्स तो सिर्फ कागज पे प्रिंटेड होते हैं ना, जो समझा रहा हूं मैं. वो तो अवेलेबल है उसके अंदर यार. Okay. What's a magnetic dipole? इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने कंपेयर करा था. What was a magnetic dipole moment? It was a product of one of the pole. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है Q इंटू टू ए, यहां पे था Q इंटू टू एल. यस. याद आया? हम्म. और ये लिखा हुआ है उसके अंदर. सो योर लेम एक्सक्यूज टेल्स मी कि यू आर नॉट सीरियस कैंडिडेट यार. अभी भी जिसको करना होता है ना वो ढूंढ लेता है यार. उसमें लिखा होता है. अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देर इज अ वे देर इज वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. रास्ता ढूंढ लेते हैं हम. यू कैन आस्क मी फ्रॉम वेयर टू स्टडी दिस, आई कुड हैव टोल्ड यू दैट. अभी भी तुम बहाना मोड में हो यार. यू आर स्टिल इन एक्सक्यूज मोड, विच शोज मी योर लेवल ऑफ इमेच्योरिटी. एंड यू आर पिटिंग मी अगेंस्ट केमिस्ट्री. तो मुझे अब केमिस्ट्री से compete करवा रहे हो कि सर आप नोट्स नहीं देते. दिस इज योर नहीं मैसेज टू मी. नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ मैं. दिस इज बस हॉरिबल ये, मैन. नहीं सर ये नहीं कहना चाह रहा था, ये गलत इंटरप्रेट हो गया. तो मैं तो बस ये और मैं बताऊं. आपको दिखा दूं कि वो सारे नोट्स का एक एक वर्ड, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री भी आती है, वो किसी बुक से टोपे हुए हैं. अपना कोई नहीं बनाता यार. आई एम नहीं शोइंग सर, यू दीज नोट्स. मैं दीज आर बिल्कुल ये फ्रॉम नहीं अ कहना बुक चाहता ओनली. था. सॉरी अगर आपको बुरा लगा. अरे नहीं, वो बात ही नहीं है. आई थिंक यू विल सफर ना बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज एटीट्यूड. बैड एटीट्यूड है ये. लुक नहीं एट सर, दिस एक्चुअली मैग्नेटिक मैं डाइपोल. जैसे पिछले जो चैप्टर है मैं उनके खुद नोट्स बना रहा हूँ. वो तो उसमें सबसे थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि वो बनेंगे कहाँ से? वो बनेंगे वो, तो उसमें से. एक्चुअली उसमें मेरे को टाइम नहीं लगता थोड़ा सा, इसका चक्कर है. अब जैसे इसके मैं जब नोट्स बनाऊंगा तब फिर इसकी डेफिनेशन मेरे को याद होंगी, तो थोड़ा मतलब सा. पता होना चाहिए यार. आप अगले दिन क्लास में आ रहे हो, आपको पिछले का कुछ पता ही आता ही कुछ नहीं है. रिवाइज तो करके आओ. बी ऑन टॉप ऑफ इट ना, कि भाई मुझे पता है फॉर्मूले क्या है, क्या पढ़ा था हमने, कैसे करा था. इतना तो बेसिक तो साथ साथ रिवाइजेशन चलता है यार. एनीवे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मेरे पास इतने सारे नोट हैं, यू वोंट बी एबल टू हैंडल देम. लेकिन उसका मैं, आई एम टेलिंग द जिस्ट ऑफ मैनी मैनी सोर्सेस. एक जगह से नहीं, मल्टीपल 6-7 जगह से जो बेस्ट होता है वो इकट्ठा करा जाता है, ना कि एक जगह से. देन यू गेट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दैट पर्सपेक्टिव, whereas there may be better explanation of something in something somewhere else also. तो एक ऑथर वगैरह तो आई थिंक एसएल अरोड़ा और एनसीईआरटी इज प्रेटी यूजफुल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. एनीवे, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट. इफ यू रिमेंबर, हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट करा था वो पी था. सो दैट वाज क्यू इंटू टू ए, राइट. मैंने Yes. बताया भी था ये साउथ टू नॉर्थ होता है.
इफ यू रिमेंबर, yes, जो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करी थी, ये वाले, ये भी बताया था मैंने कि साउथ टू नॉर्थ है, और Q इज कॉल्ड द फीड पोल स्ट्रेंथ, जो भी हमने ऊपर डिफाइन करी, yes, यूनिट भी बताए थे मैंने. yes, sir. इट्स अ प्रोडक्ट, ये रहा, एंड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग यार. तुम समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स ही बोल रहा होता हूँ मैं. Okay, let's do some numericals. Please get your act together in terms of consolidation of knowledge. नहीं तो याद नहीं रहेगा. मैं तो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि आगे चल के सुनना हो, कंपेयर करना हो कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, क्या पढ़ा था, कैसे प्रैक्टिस करी थी, वो भी आपके रिकॉर्ड में रहेगी परमानेंट. बट डोंट एक्ट वीक कि जी नोट्स नहीं थे जी. बोले नोट्स तो सर हम कहीं से भी ले आते हैं, हमें तो पता है क्या पढ़ना है. योर टारगेट इज कंप्लीटिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड एसएल और line by line. Finish. Ample theory is given in them. और उसमें कुछ समझ नहीं आता, I've told you the offer is open. I will explain you. ठीक है, वो चिंता की बात नहीं है. चिंता ये इसको छोड़ दो कि नोट नहीं है. Notes available, NCERT's notes. Okay, so let's take 2-bar magnets. Now let's do something simple. You can see the formula today. Next time I won't let you see the formula. Answer याद करते जाओ, साथ साथ उड़ जाएगा दिमाग से. Yes, sir. Okay, so this is your bar magnet. The bar magnet pole strength QM. Okay, इसके जो units हैं वो हैं some pole strength is given to be 10 AM. Okay, ampere meter, and the bar magnet length L is given to be, which is 2L generally, if you remember. उसको 2L लिखते हैं हमेशा. Okay, 10 centimeter है, और pole strength is, so this is pole strength. Pole strength is given to you. L is 10 centimeter, and you have to find the magnetic field at R हो गया, जहां पे ढूंढते हैं वो डिस्टेंस R होता है 0.2 meters, and you also need to find the B axial. पहला क्वेश्चन तो हमेशा यही है, B axial और B equator. मतलब फॉर्मूला फिटिंग है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. Only difference is because you are not given, if you see the formulas, first step you have to decide whether the distance is very large or not. The 0.2 meter is 200 centimeter. So I think compared to the length of the magnet, the distance is 20 times. तो काफी बड़ा है. R, मतलब R is very largest compared to the, तो we can apply that formula. But choice है आपकी कि कितना accurate आप जाना चाहते हो. Of these two, you can apply, depending on what you think काफी बड़ा है कि नहीं है. If you think R and L are comparable, but L is not a short magnet. L भी 10 centimeter है, और R is 200 centimeter. If you think it is very large, go with these formulas. If you think that R is 200 centimeter and 10, तो 20 times काफी नहीं है comparison में, it's not too much, then go with this. Either way you will get almost the same answer. ये approximation है. These formulas are approximation. They assume this, right, कि the bar magnet is very very small as compared to the R. ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से लगा सकते हो, whichever you feel is a good answer to give. B axial or B equator. Okay, and obviously since you have in the formula M, which is the अभी जो हमने पढ़ा magnetic moment of a bar magnet, since you are given the pole strength and L, you can find the P also, right? M, magnetic moment is given by pole strength multiplied by the length of the bar magnet. ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो M भी आ जाएगा.
ये m आ जाएगा। ये है जो l होता है, हम इसको 2l बोलते हैं बाय द वे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, मैग्नेटिक लेंथ 2l बोलते हैं। तो ऐसे भी दी होती है वो कि द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली इट इज 2l। हम्म, तो जो वेन एवर यू डू दीज फॉर्मूलास जस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये फॉर्मूले जो डिराइव होते हैं, ये वाले बी एक्सियल और बी इक्वेटर, दीज आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ 2l। तो ये हाफ द लेंथ होता है इसके अंदर विच इज यूज्ड। ठीक है। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो होती है वो 2l होती है। अगर फॉर्मूले में l नजर आता है तो पुट इट एज हाफ। डोंट गेट कंफ्यूज कि लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज गिवन, तो मैं इसको यहाँ 2l लिखना चाहिए एक्चुअली मुझे। हम्म, लेंथ ऑफ द मैग्नेट 2l माना जाता है। उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी q डॉट 2a होता है, इफ यू रिमेंबर। हम्म, ठीक है, यस होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड, बैठा कहीं पे जाके। यस। पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट मूवमेंट, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन यू बी आस्क्ड? ये तो होगा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला फिटिंग। ओके, हम्म, और दिस इज योर ये हो गए नॉर्थ साउथ, और ये दो हो गए मैग्नेट। अब and if you have two magnets and let's say we are comparing, so obviously because of two magnets you will have two magnetar, so that their north poles are 20 centimeter east and 20 centimeter west from the compass needle। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला पॉइंट दे रखा है आपको, ओके, ये वाला पॉइंट दे रखा है। दिस पॉइंट इज 20 मीटर, दिस इज 20 and this is 30। ये 20 है, ये 30 है, पॉइंट सी है पॉइंट कोई। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक C's compass। हम्म, Okay, you have to tell what is the ratio of the magnetic moments of these two bar magnets at the point. It is given to you that the compass needle at C remains undeflected, मतलब दोनों साइड से उसको सेम ही फोर्स मिल रही है। इफ यू नो कंपस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट। हम्म, उसके भी दो ही पोल होते हैं कंपस के, राइट। एक रेड वाला होता है जो नॉर्थ पोल होता है, ये हो गया नॉर्थ और साउथ। तो अगर आपने कंपस यहाँ पे कहीं सी पे रखी है और वो अनडिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब उसको इक्वल फोर्स मिल रही है दोनों साइड से, नॉर्थ पोल से। तो कंपस का साउथ पोल शायद इस तरफ है, इस तरफ, और ये वाला जो पोल है इसका, ओके नो सॉरी, द कंपस इज केप्ट इन अ मैनर परपेंडिकुलर। सो कंपस आपने ऐसे रखी है, ओके, ये आपने सीधी रखी है, ये आपकी कंपस है, ओके, हम्म, एंड इट इज अनडिफ्लेक्टेड, ये घूम नहीं रही। तो दोनों ठीक तरफ है। से इसको ताकत मिल रही है, मतलब सेम। एक नॉर्थ पोल इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है अगर ये साउथ होता तो, और ये भी इसको ऐसे कर रहा है, तो यू डोंट सी एनी रोटेशन। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द नेट, सॉरी ये इन्होंने इक्वेटोरियल नहीं दिया हुआ, इन्होंने लिखा है क्वेश्चन के अंदर, लेट मी रीड्रॉ दिस, आई थिंक बाद में दिए दो। So at C you have a compass and the compass is lying along the axial axis only. So axial axis का मतलब हो गया आपका, the compass is
lying here, ऐसे पड़ी हुई है, and it is not deflecting, which means if you see the south pole, north pole, south pole, all of them will act on this compass, and it is given that compass is undeflected. मतलब ये जो चारों पोल है कंपास के ऊपर जो नेट फोर्स लगा रहे हैं वो जीरो है. यस सर. ये पोल भी लगा रहा है, ये पोल भी लगा रहा है, ये पोल भी लगा रहा है और ये पोल भी लगा रहा है, लेकिन कंपास बिल्कुल वहीं रुक गई है सीधी. So that means the resultant force of all the four poles on the compass is zero. Hmm. ठीक है, so it remains undeflected. So the fields of the two magnets किस तरह के होंगे, क्योंकि हमें मैग्नेट्स के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है, यस सर. बिल्कुल नहीं बताया मैग्नेट के बारे में, राइट? तो हाउ इज दिस पॉसिबल दैट एक कंपास जो है वो 20 सेंटीमीटर एक साइड से है और 30 सेंटीमीटर it is from the other side, but it remains undeflected, and the net resultant force due to two bar magnets, bar magnet number 1, okay, bar magnet 1 and the bar magnet 2, both are able to put a force, although the distances are different, which means these two are equal and opposite. Whatever force is coming from them is equal and opposite, और वो दिख भी रहा है कि बिल्कुल आइडेंटिकली प्लेस्ड हैं दोनों बार मैग्नेट. तो अगर ये वाला हम पोल ले लें, एक पोल ले लें कंपास का और एक पोल ये ले लें, तो साउथ पोल अगर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला साउथ पोल भी अट्रैक्ट ही कर रहा है इसको, है ना? मान लो ये नॉर्थ पोल है, so ये साउथ पोल इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दिस नॉर्थ पोल, बट साउथ पोल इज ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दिस नॉर्थ पोल. This south pole is getting repelled by this, but this south pole is also getting repelled by this. So दोनों sides से there is something happening which is making the force to be zero, and therefore the compass does not deflect like this. Unequal force होती है अगर किसी इसके ऊपर तो डिफ्लेक्ट हो जाती, वो टेढ़ी हो जाती, लेकिन हुई नहीं, which is only possible if the two bar magnets have equal magnetic field. So this compass has been put in an external magnetic field of two bar magnets. ये मैग्नेट है, खुद ही कंपास एक मैग्नेट है और वो दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, एंड इट इज अनडिफ्लेक्टेड. आप एक चार्ज को दो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इट इज अनडिफ्लेक्टेड, राइट? दोनों फील्ड इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे? क्यू ई चार्ज के ऊपर. तो ये कब पॉसिबल है कि अनडिफ्लेक्टेड रह जाए? व्हेन E1 इज इक्वल टू E2. ये दोनों फोर्स बराबर हो गई ना. क्यू तो कट गया, चार्ज जो रखा है एक्सटर्नल फील्ड्स में दो, वो तो फोर्स से ये एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड इट इज नॉट मूविंग. एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगा रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगा रखा है, यहाँ चार्ज पड़ा हुआ हिल नहीं रहा. क्यों? एक उसको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक उसको यहाँ से पुश कर रहा है और ये वाला भी इसे इस साइड से पुश कर रहा है, नहीं हिला. So net force इसके ऊपर zero हो गई. Doesn't move. Same is the case with the compass. So the compass is undeflected. Compass doesn't show any motion, which means it is only possible if the force is same. क्यों? Pole strength is given by F upon B. Force is equal to pole strength. Q लिखते हैं हम इसको, by the way, okay? Q भी लिखते हैं. अगर आप Q M से comfortable हो तो वो लिख लो, multiply by B. Now we know the force due to the pole strength तो कंपास की है अपनी, छोटी सी कंपास इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, ऐसे मान लो इसको. तो एक बार मैग्नेट दो बड़े बार मैग्नेट्स के बीच में पड़ा हुआ है, ये सिचुएशन आ गई. क्लियर है? एंड इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स. ये कैसे पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इफ B1 इज इक्वल टू B2, बिकॉज force का जो formula है, that is what? The formula of force, if you see this, is Q into B. Now Q is same for both the cases because the compass is Q. And there are two fields. So F1 Q M into B, and दूसरे side से the force which is coming is this. And the F1 is equal to F2 because it is undeflected. Equal and opposite force लग रही है. So if I equate these two, ये भी कट जाएगा and B1 will become equal to B2.
ठीक है। So ये तभी possible था when the two magnetic fields are equal. Now you know magnetic fields are equal and opposite. जैसे कि electric field इस side दिख रहे हैं आपको. These two electric fields which you drew, एक electric field मैंने इस side बनाया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस साइड बनाया. इसी तरह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, वो दिख भी रहा है. इस तरफ से जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो ऐसा होगा और इस तरफ से ऐसा होगा. सो रिवर्स, राइट? यस सर। एंड B1 इज इक्वल टू B2. नाउ यू से ओके, एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंपास के ऊपर लग रहा है, बिकॉज कंपास लिखा हुआ है इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट. ठीक है? So the compass is lying on the axis of the bar magnet. Okay? If the compass is lying on the axis of the bar magnet, then तो जो मैग्नेटिक फील्ड थे वो भी एक्सियली हुए, जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक्सिस पे है वो वाली फोर्स, राइट? और एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू गो अबव, एक्सियल का जो फॉर्मूला था, इफ यू सी, ये वाला म्यू नॉट 2m वाला. यस सर। So, दोनों का वो लगा लो, एक्सियल का फॉर्मूला. So let me apply the axial formula now. Let's write the axial formula of the. So we will write. पहले हमने क्वेश्चन को समझ के लिए ये डिसाइड कर लिया कि B1 इज इक्वल टू B2. उसके बाद हम B1 और B2 का फॉर्मूला लगा लेते हैं. B1 लेफ्ट साइड पे डाल देता हूं मैं. इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन r1 क्यूब. ओके, बिकॉज रिमेंबर कंपास जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बड़ी छोटी होती है एज कम्पेयर टू बार मैग्नेट्स, इतनी सी होती है. तो जो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है कि द लेंथ ऑफ द द मैग्नेट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट आर के. तो ये तभी लगता है, और कंपास में वैलिड है ये पॉइंट, बिकॉज कंपास की अपनी लंबाई 2l बहुत छोटी होती है. 2l is the length of the compass here, and r is the distance from the center of the magnet at which the compass is lying. तो ये जो distance होता है r, वो center of the magnet से नापा जाता है. ये एक distance ये हो गया, और दूसरे वाला हो गया ये. तो इसके अंदर वैल्यूज डाल लेता हूं मैं अब. ओके, सो ये इन्होंने डिस्टेंसेस दे रखे हैं कि 20 और 30 है. Okay, so the north poles are at 20 centimeter and 20 centimeter west from the. तो ये वैल्यू डाल ली इसके अंदर r क्यूब, और दूसरा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 2m2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी दिस इज B1 एंड दिस इज B2 अपॉन R2 क्यूब, सॉरी. ठीक है? सो B1 is equal to B2, बराबर कर लो, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2m1 अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 2m2 अपॉन R2 क्यूब. Distances are given to you as 20 and 30 centimeter in the question. ये तो कट गए दोनों साइड से. यस सर. 2 भी कट गया. m1 m2 इसकी की रेशियो निकालनी है, is given by r1 by r2 का क्यूब. So this is 20 by 30 centimeter का क्यूब is equal to 8:27. आंसर. ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब पीपल प्रिपेयर कंप्लीटली फॉर नीट एग्जामिनेशन. कंप्लीट नीट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम एनसीईआरटी, जेई मेंस, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. सबने क्या करा हुआ है? एवरीबडी इज कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी नाउ, या पुराने जमाने की किताबें लिखी हुई हैं. सो
Your Bible is NCERT and a reference book. Reference book जनरली notes ही होते हैं वो printed. So don't depend on any note. Your understanding is more important. ये हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लंबी लंबी पोथों वाली. क्लियर कट है, ये मैग्नेटिक पोल होता है, स्ट्रेंथ होती है, बी होता है, ये होता है बस. इतने मतलब पीछे जैसे 1 मार्कर दिए हुए हैं मैग्नेटिज्म में, 70-80 1 मार्कर दिए होंगे कम से कम. यू हैव टू फोकस देयर कि मुझे वो आते हैं कि नहीं आते हैं. डाउट हो मुझसे पूछो. रेपिटेशन है सब जगह पे. यू पिक अप एनी 5 बुक्स, यू विल सी एवरीबडी हैज डन कट एंड पेस्ट फ्रॉम द सेम सोर्स. वो तो है, वो तो है। मतलब कोई अपना एक वो थोड़ा सा ब्रांड बना लेते हैं लोग कि ऐसे कि वो नोट्स उसके तो ऊपर जो प्रिंटेड वाले वो तो बेकार है। मतलब कुछ ऐसा कुछ मतलब कोई खास कुछ होता नहीं है. मैं जो डिस्टिल्ड पढ़ाता हूँ, कुछ वो कहीं प्रिंटेड से कुछ नोट्स तो कहीं से. किसी के भी अच्छे नहीं होते। मतलब एक अगर आपने नोट फॉलो करने हैं, अगर एक करने हैं क्योंकि सुविधा रहती है, फॉलो एनसीईआरटी एंड एसएल. कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके अंदर मतलब आपको मिलेगी नहीं. ये मतलब ब्रॉडली यू विल गेट एवरी डैम थिंग यस। कवर्ड मिलेगी. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ये डिपेंडेंसी होती है हमारे माइंड की यार, ये ट्रैप है. और जो ट्रैप में नहीं रहना, बिल्कुल ट्रैप से बाहर रहना है हमेशा दिमाग एक्चुअली से. जो वो एनसीईआरटी की जो डेफिनेशंस होती हैं वो थोड़ी सी ठीक है, हार्ड गो टू लैंग्वेज एसएल की ना, होती एसएल में लिखी हुई है. चेक विद मी. सर इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं, मैं आप दे दो, मैं दे दूंगा. ढूंढने का प्रयास करो, लेकिन मतलब हम ढूंढेंगे भी नहीं, है। हम खोल के ही नहीं देखेंगे, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है. मैं आपको एक एक लाइन दिखा दूंगा एसएल और एनसीईआरटी में लिखी हुई है. एनसीईआरटी की जो समरी होती है ना, ब्यूटिफुली रिटन डेफिनेशंस आर देयर इन द समरी. यू गो टू एनी बुक, यू विल फाइंड ब्यूटिफुली रिटन समरीज. उसमें आपको सब डेफिनेशन मिल जाएंगे. नहीं मिलती मुझसे पूछो ना, मैं भी कहीं से प्रिंटेड मटेरियल ला के आपको पकड़ा देता हूँ. बोले मैंने तो नोट्स दे दिए, फिर क्या करोगे? नहीं, वो जैसे प्रिंटेड मटेरियल तो बिल्कुल घटिया होता है वो तो। यार वो सब कॉपी पेस्ट है ना सारा. वो हैंड रिटन नोट्स के जमाने गए. वो भी कोई, मेरे को अगर कोई प्रिंटेड मटेरियल याद हो जाएगा तभी तो मैं हैंड रिटन बनाऊंगा. मैं अपनी कोई न्यूटन का लॉ अपने आप तो नहीं बना सकता ना. या मैंने यस। एक 4 किताबें पढ़ डाली 20 साल, मुझे याद हो गया. और हर किताब से मुझे 2-2 एग्जाम्पल आते हैं. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, और जो मैंने याद करा वो उसे हाथ से लिख दिया मैंने. और वो फोटो कॉपी नहीं होती, वो पकड़ा दिया. वो चलता था आज से 25 साल पहले. ओल्ड स्कूल. नॉट अ बैड थिंग टू डू, बट वो एक एक चीज पे निर्भर है सिर्फ. वो तो बिल्कुल बेकार है। मतलब ऐसा, नॉट दैट कंप्लीटली बेकार है, यूजफुल भी होता है कुछ कुछ, बट परफेक्ट नहीं हो सकता. वो कांट बी परफेक्ट. स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस आर अवेलेबल एनीवेयर यू वांट यार. ऑल राइट, सो टॉर्क है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट. मैंने से मैग्नेट, आई एम ओनली डूइंग बार मैग्नेट की पढ़ाई आजकल. ठीक है, Okay. सो मेंटली प्लीज बी डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग कि भैया ये नहीं था वो नहीं था. बोला जी नहीं है तो भी ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं. पहले जो हाथ में आपके पास 2 बुक्स हैं वो आपने कंप्लीट कर ली. आपने उसमें से तैयारी करी कि नहीं करी, दैट्स ऑल. इफ यू डू दैट यू आर सक्सेसफुल. इफ यू आर not doing it, it's very difficult to memorize all of this at the last moment. Okay, let me just give you. So मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेता हूँ और बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली सिचुएशन है, विच इज दिस. दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड से दिस इज योर नॉर्थ पोल. सॉरी, दिस इज योर मैग्नेट. सो ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है मैंने. एंड व्हाट आई डू इज आई नाउ हैव अ, आई कीप इट इन अ एक्सटर्नल magnetic field. Okay. Okay, so let's keep it in a external. External. So this is our external magnetic field. And so now this bar magnet will experience force at north and south pole individually. And because there is a
this is not lying straight. It'll experience a rotational force. Okay, and the rotation, the torque will come into picture from the two forces on the two dipoles. तो जो end है उसका, you know कि जो force होती है किसी भी पोल के ऊपर, that is given by the pole strength multiplied by the B external. ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है नॉर्थ पोल पे, और एक फोर्स लग रही है साउथ पोल पे इनटू बी. ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली सिचुएशन है, वो भी ऐसे रोटेट करता है. ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल. एंड यू नो एक जो है अलोंग द, सो इफ यू सी नॉर्थ पोल के ऊपर व्हाट यू फाइंड इज दैट द फोर्स इज अलोंग द बी, सेम बी की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है. ये राइट ऐसे लग रही है, और इसमें देखो फोर्स उल्टी लग रही है कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो द फोर्स इज गिवन बाय क्यू एम इंटू बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी ऑन द नॉर्थ पोल, एंड फोर्स ऑपोजिट लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्टवर्ड. क्यू मैं इधर साउथ लिख देता हूँ जिससे पता रहे कि वी आर रेफरिंग टू साउथ एंड नॉर्थ, राइट. सो दिस इज, ठीक है. Okay, now you can see the two forces have a distance between them, and we know the length of a dipole is given by 2L. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में वो ये है, ये वाला. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मान लो द एक्स एक्सिस से इस समय बार मैग्नेट का जो एंगल है दैट इज गिवन टू बी थीटा. 2L मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो ये भी थीटा ही हो गया. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है दो फोर्सेस के बीच में. सो एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द फोर्स आर्म. दैट टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू फोर्स आर्म. ओके, फोर्स इनटू फोर्स आर्म. सो फोर्स इज इनटू फोर्स आर्म. ये टॉर्क निकाल रहा हूं, मैंने टॉर्क का मतलब होता है फोर्स का वो असर जो रोटेशन पैदा कर सकता है. फोर्स एक तो एक बॉडी को लीनियर मोशन में एक्सेलरेट भी कर सकती है ऐसे धक्का मारने पे, तो हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू ma. लेकिन एक फोर्स ऐसी भी हो सकती है कि आपका एक दरवाजा हो, डोर, और आप हैंडल से खींचो तो डोर रोटेट होके ऐसे आ जाए. तो फोर्स जब एक एक्सेस के डिस्टेंस पे लगती है तो रोटेशन पैदा करती है. ये एक्सेस ऑफ द डोर है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, आपने फोर्स यहाँ लगाई है तो दरवाजा खुलता है ना ऐसे, वो घूमता ही तो है, रोटेट ही तो होता है. तो फोर्स हैज केपेबल, इफ यू हैव इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बीइंग अप्लाइड. मान लो आपके पास ये डोर है जो सेंटर में फिक्स्ड है, यहाँ पे आपने ऊपर से एक डंडा, एक बंदा यहाँ से धक्का मार रहा है और एक बंदा यहाँ से धक्का मार रहा है, तो भी रोटेट करेगा. ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, जैसे मॉल में घुसते हैं तो मॉल में घुसते हैं तो वो शीशा घूमता रहता है, आप इधर से धक्का मारते हो दूसरा तो ऐसे खुल जाता है वो. तो वो बेसिकली वो भी दो फोर्सेस ही हैं, लेकिन उन दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस है. मान लो रुका हुआ है, चल नहीं रहा, आप आए, आपने ऐसे धक्का मारा, दूसरा बंदा मॉल के अंदर से आया, उसने ऐसे धक्का मारा, तो दौड़ ऐसे नहीं खुल जाता. दो टू फोर्सेस हैव अ गैप बिटवीन देम, राइट. एक ही पॉइंट पे तो नहीं लगा रहे, दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं. तो door rotates even with that. So similarly, this bar magnet, when it is exposed to two forces equal and opposite at a distance of this distance, which is the sine theta, 2L sine theta, this is given by torque is equal to Qm, force into the perpendicular distance between the two forces. दोनों forces बराबर हैं by the way. Both forces are QMB in opposite direction. So QMB का magnitude multiplied by the perpendicular distance 2L sine theta. So this expression now gives you the torque being applied on the bar magnet, because the bar magnet has been kept in an external magnetic field. अगर आप बार मैग्नेट को पैरेलल कर देंगे, अगर आप मान लो एग्जाम्पल, थीटा पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है. इफ यू कीप दिस बार मैग्नेट पैरेलल, ऐसे रख दिया यूं,
Okay, and this is your north pole, this is your south pole. Tell me, at this point, the south pole पे ये force आ रही है QMB, Yes, sir. और इस तरफ भी QMB आ रही है, Hmm. बट दोनों फोर्सेस के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही लाइन में आ गए. Hmm. यहाँ कम से कम इन दोनों के बीच में गैप तो था, ये वाला. Yes. Oh, I will just show you that gap in a different color so that you are able to. Let me show you. ये गैप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले. hmm. Sorry, I think I don't know what color is being. ये गैप दिख रहा है. ये वाली फोर्स है लेफ्टवर्ड और ये वाली फोर्स है राइटवर्ड, जो ऊपर लग रही है बार मैग्नेट के ऊपर. Hmm. दूसरी फोर्स में दिखा देता हूँ, ये वाली. ये दो फोर्सेस हैं, एक पिंक वाली और उन दोनों के बीच में गैप देखो, परपेंडिकुलर गैप दोनों की लाइन में. दिस इज Yes. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. बट अगर ये फोर्स जो है ऐसे नीचे आ जाए, ये वाली फोर्स यहाँ आ जाए Hmm. इसी की लाइन में, Yes. दोनों स्ट्रेट लाइन में हो गई. Hmm. व्हाट इज अ परपेंडिकुलर गैप? तो तब होगा ना, एक फोर्स ऐसी है और एक फोर्स ऐसी है, तो परपेंडिकुलर गैप तो रहेगा ना. Correct. अगर मैं इसको ऊपर उठा के लेता आता हूँ, लेट मी जस्ट पिक इट. इफ आई सेलेक्ट दिस एंड आई ब्रिंग, अभी भी परपेंडिकुलर गैप है. हाँ. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके गैप निकाला जा सकता है. Yes, sir. इतना तो है कम से कम. Hmm. अब इसको मैं उठा के और ऊपर ले आता हूँ, बिल्कुल पैरेलल कर दिया. व्हाट इज अ परपेंडिकुलर गैप बिटवीन देम? जीरो. Zero. So there is no force arm. When I write this, torque multiply by perpendicular distance की बात कर रहा हूँ मैं, between the two forces की line में. Perpendicular distance between the line of action of two forces. This is very important. अब Hmm. लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? ये फोर्स लेफ्ट पे सीधी, और इन दोनों फोर्सेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है हमें. अगर ये यहाँ पे जो ये दो फोर्सेस हैं उनके लिए ये लाइन है जो Hmm. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. इधर देखो, ये पर्पल में जो सेंटर में आ रहा है मैग्नेट के. लेट मी शो यू अगेन. लुक एट दिस. ये तो एक ही लाइन में आ गए, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है. नहीं. तो ये आपका एक सिचुएशन जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है. One magnet side is this, the other magnet side is this, and the forces which are acting on them are this. एक पे ऐसे लग रही है फोर्स, दूसरे के ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है. तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर मैं इसको पीछे खींच लूं, ओके, फिर पीछे खींच ली मैंने एक की लाइन ऑफ एक्शन को. कैन यू सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन? हाँ है. ये जो मैंने अभी बनाया है, Hmm. इसी को बोलते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये लाइन ऑफ एक्शन है. Okay. अब मैंने इसकी जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाने के लिए इसे पीछे खींचा, वो तो जाके फोर्स पे ही मिल गई जाके Yes, sir. इस केस में. सो द लाइन ऑफ एक्शन जॉइंस, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Hmm. Correct. सही है? Yes, sir. एनी डाउट्स इन योर माइंड दैट समझ नहीं आया? Hmm. बट प्लीज रिवाइज बैक. ये नोट्स ही हैं, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है नोट्स जो पढ़ोगे और इसमें एक वर्ड का भी. Yes, sir. Okay, now let's say you have found the torque and you've understood how the torque operates. Okay, so this is your torque. Okay, so the torque you have found is to be force QMB into 2L sine theta. And theta, remember, theta is the angle between the magnetic field and 2L. ये आपका 2L है, हाँ. टेढ़ा. So you can see the 2L. ये आपका 2L है. Yes, sir. But your magnetic field is here. ये जो मैंने Hmm. बना रखे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिख रही हैं ये. Yes, sir.
So the angle between the magnetic field and the 2L, ये वाला एंगल दिख रहा है हाँ, या ये वाला एंगल? हम्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हॉरिजॉन्टल हैं सारी ये, yes sir, और बाहर मैग्नेट तिरछा है, टेढ़ा. हाँ, So the angle between the line joining the two poles is this. हाँ, तो हर जगह एंगल थीटा ही तो है इन दोनों के बीच में. Pick up any yes, place. हाँ, Even this is theta, right? yes, So this is also theta, this is also theta. तो ये जो sin theta में theta है, it is the angle between the line joining the two poles, 2L वाली line, and the magnetic field which is external. Any doubts in your mind pertaining to figure? कि figure नहीं समझ में आई है? ले ऐसे, Clear? yes sir, Okay. All right. Now let's do some special cases as to what exactly happens when different. एक केस हमने कर लिया जिसमें we have already noticed. This case is where theta is equal to 0 degree. The line of the two poles, which is this 2L, and the force are parallel to each other, right? हम्म, कोई एंगल नहीं ना, ये 0 डिग्री है इस तरफ, yes इस sir, तरफ 180 डिग्री है. तो टॉक में अगर आप साइन थीटा डालोगे, थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 पे, तो दोनों केस के अंदर, केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों केस में साइन थीटा टॉक विल बिकम आउट टू बी 0. So if the magnet is parallel to the magnetic field, if 2L line is parallel to B, there is no torque. कोई घूमने का पपंग नहीं घूम सकते आप. और फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं ही, दोनों ही क्यू एम बी है. yes sir, ये भी क्यू एम बी है, ये भी क्यू एम बी है. हम्म, फोर्स भी इक्वल और टॉर्क का इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, ना तो घूमेगा ना हिलेगा ना आगे पीछे जाएगा. हम्म, ठीक है. लेट्स टेक अनदर केस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर द डाइपोल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द बी. तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज मीन्स 2L आपका जो है वो ऐसे हो गया है, क्योंकि हिलता तो रोटेशन से डाइपोल है. आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर लिया, वो तो यही है मैग्नेटिक फील्ड. तो यू आर नॉट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यू जस्ट फिक्स्ड इट. ये रहा जी मैग्नेटिक फील्ड हमारा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वी स्पेस्ड है बिल्कुल ही. और इस समय अगर आप देखोगे, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द पोल्स इज दिस. ठीक है. So these two lines, the line joining. So this is your B and this is your 2L. So you can see the angle between them हम्म, is 90 degrees. So now the torque is given by QMB 2L sine 90, and sine 90 is 1. हम्म, So at this time you have maximum torque. अगर आप किसी बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे इस तरह से, तो उस पर घूमने की ताकत बहुत लगेगी. जैसे ही रखोगे ऐसे घुमा देगा उसको, घूम जाएगा. क्योंकि इस समय यहाँ पे जो फोर्स है, ये वाली एक फोर्स ये लग रही है पोल पे, हाँ, और एक फोर्स ये लग रही है. ठीक है. ठीक है, दोनों ही क्यू एम बी है, बट डू यू सी दैट गैप बिटवीन द टू फोर्सेस बिकम वेरी हाई, परपेंडिकुलर गैप. ये क्योंकि साइन 90 है. yes sir, अगर ये टेढ़ा हो जाएगा जैसे कि ऊपर वाली सिचुएशन में है, तो ये जो गैप है ये वाला जो पर्पल में नजर आ रहा है ऊपर, हम्म, वो कम है. ये वाला गैप, ये भी है परपेंडिकुलर गैप ही, दिस वन yes sir, है, ये भी गैप ही. बट क्योंकि मैग्नेट टेढ़ा पड़ा है तो ज्यादा नहीं है. अगर मैग्नेट बिल्कुल 90 डिग्री पे चला जाए, जैसे कि हमारी शेप है ये वाली, तो डू यू सी दैट दिस गैप गोज अप ड्रास्टिकली. ये बढ़ गया दोनों फोर्स yes, के बीच में. हाँ,
अगर मैं इसे टेढ़ा कर दूं, if I revolve it a bit, if I move it around like this and I say, okay, I'm going to okay, I think ये घुमाने नहीं दे रहा, but if I for example draw another magnet which is like this, हम्म, which means I rotate it now, right? If I draw the magnetic field lines, okay, obviously गलती ये है कि अगर घुमाया तो उसका लेवल ऊपर तक ही कैसे है, हम्म, बार मैग्नेट तो नीचे आ जाना चाहिए ना। yes sir, भाई तुम किसी चीज को झुकाओगे फिर भी वो छत पे छूता थोड़ा ना yeah, रहेगा, yeah, it has to go down, right? yes, So let's say it goes down. Now if you find the perpendicular distance, ये फोर्स ये एक हम्म, एट अ सर्टेन डिफरेंट एंगल, ये एक फोर्स ये हो गई लेफ्ट साइड पे, वो तो क्यू एम बी तो लगती रहेगी। yes sir, बट नाउ इफ यू नोटिस द perpendicular distance and I because I need to find the, इसको मैं पीछे खींच लेता हूँ जिससे मुझे इसकी एक्शन लाइन पता रहे। Do you see now the distance has gone down compared to the previous distance? okay, इतना सा रह गया सिर्फ, हाँ, पहले बहुत लंबा था। yes sir, So previously it was this much, right? हम्म, And now it is this. correct, So at 90 degree you have the maximum force arm, which is the distance between the two lines of forces. जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रही है उन दो लाइंस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 90 डिग्री प्लेस्ड है जब मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री से कम एंगल होता जाएगा तो टॉर्क की क्वांटिटी कम हो रही है। तो टॉर्क, इफ यू नोटिस इन अ फॉर्मूला ऑल्सो, टॉर्क इज बीइंग गिवन बाय QMB into 2L into sin थीटा। हम्म, सो अगर मैं बड़े पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेट ले लूं तो QM विल गो अप, टॉर्क बढ़ जाएगा। मतलब इफ आई रिप्लेस स्मॉल मैग्नेट विद अ लार्ज मैग्नेट मतलब ज्यादा पोल स्ट्रेंथ वाला, हम्म, इट विल एक्सपीरियंस मोर टॉर्क, राइट? yes sir, If I change my external magnetic field to a larger magnetic field, again the torque will be very high. हम्म, If I have more distance between the south pole and north pole, which is 2L distance, again the torque will be. If I take a longer magnetic field, जिसकी magnetic length ज़्यादा है. Also, if I control my theta, the angle between the magnetic field and the 2L, B and 2L का जो एंगल है, अगर उसे भी मैं चेंज कर दूं तो भी टॉर्क बदलता है। तो टॉर्क जनरली तो जो आपने एक बार मैग्नेट चुन लिया वो उसकी पोल स्ट्रेंथ डिसाइड हो गई, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी चुन लिया, लंबाई भी, तो थीटा से ही फर्क पड़ रहा है बेसिकली। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा yes इज sir, इक्वल टू 0 डिग्री था, टॉर्क इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमास आ गया आपका हम्म, साइन 90, yes sir, टी मैक्स आ जाएगा। दिस इज मिनिमम टॉर्क। लगे नहीं रहा, कोई घूमने का असर नहीं है अब। ठीक है, ये क्लियर है दिमाग में? yes sir, Okay. And when you study this from any source, you will exactly find identical language. Not an inch of difference is going to be there. ठीक है जी? अच्छा, अब ठीक, हमने टॉक के बारे में पढ़ लिया। Now let us understand this whole thing in terms of the work done also. okay, Okay, so let's understand this in terms of work done and potential energy. Potential energy. See, why I say I believe in textbook, because textbook are very elaborative and very detailed. They actually give you reasoning for everything. Notes will give you definitions. बट जो डिटेल होता है ना, बहुत डिटेल में समझाना है कि हुआ क्या है, जनरली वो नोट्स में नहीं होता। नोट्स होते हैं डेफिनेशन, फॉर्मूला, समझाते नहीं है ज्यादा। डेरिवेशन भी सही लिखते हैं नोट्स, बट वो डेरिवेशन वहीं से कहीं से कट एंड पेस्ट ही होती है। अगर आपको डिटेलिंग करनी है कभी भी फिजिक्स की किसी भी टॉपिक की, यू हैव टू गो टू अ थ्योरेटिकल बुक जहां सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है।
ओके आप देख लेना, थ्योरी बुक्स आर वेरी फैट, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं थ्योरी की। थ्योरी मतलब ओरिजिनल राइटिंग ऑफ एन ऑथर, नॉट पीडीएफ डाउनलोड करके उसे इकट्ठा कर लिया, नाम रख दिया, वो दैट इज नॉट थ्योरी। वो नोट्स ही हैं बस, वो एक लेवल तक आपको ले जाएंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टॉक, हमें मालूम है। अब देखो, सो यू हैव अ बार मैग्नेट, ओके, एंड this is your bar magnet, and now there is a torque acting on it. The value of the torque is known to us to be q b 2l sin theta, right? कर लिया अभी तक हमने टॉर्क की डेफिनेशन। इफ द देर इज अ स्लाइट रोटेशन टॉर्क की वजह से, ठीक है, सो नाउ दिस बार मैग्नेट undergoes a slight rotation, and now what happens is it was, for example, here, and now the new position is given by this. Let me tell you the new position. जैसे कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगा लेते हैं in which this is rotating, ठीक है, ठीक है ये रोटेट कर रहा है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द टॉर्क ये थोड़ा सा रोटेट करता है बाय एन एंगल डी थीटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, और इसकी नई पोजीशन जो है वो ये आ जाती है, मान लो। ओके, सो इट हैज़ रोटेटेड बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत अच्छी डायग्राम तो नहीं है बट चली जाएगा काम। सो इट हैज़ अंडरगॉन अ रोटेशन विच इज़ क्लॉकवाइज, एंड नाउ द टोटल रोटेशन इट हैज़ शोन एज कंपेयर टू द प्रीवियस डायरेक्शन, दिस इज द टोटल डी थीटा से हिलाई है। तो ये एंगुलर मोशन है, क्योंकि ये लीनियर मोशन नहीं, इसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं आगे जा रही, रोटेट कर रही है। सो दिस इज मोर ऑफ एन एंगुलर मोशन। Okay, so this is angular motion. So if you see rotation motion chapter of class 11th NCERT, if you understand it well, then it's easy for you. Torque, angular motion, क्या हो रहा है, right? It's easy. यस सर dW, the small amount of work done to rotate it will be given by torque into d theta. 11th standard में work done की definition तो है force dot s. Force multiplied by the displacement is given by magnitude of s, dot product होता है displacement into cos theta, the cos of angle between the direction of force and the displacement. Similarly, इसी की analogy हम जब linear motion की analogy, ये linear motion है की analogy जब रोटेशन में देखते हैं तो फोर्स बिकम्स टी, एंड वर्क डन का जो फॉर्मूला है टी डी थीटा, मतलब ये फोर्स है और डिस्टेंस तो होता नहीं है इसके अंदर रोटेशन में। रोटेशन में तो डिस्टेंस का मतलब है एंगल कितना हिला, यस सर जबकि लीनियर मोशन में कितने मीटर आप आगे गए। एंगुलर मोशन में मीटर आगे नहीं, एंगल कितना गोल घुमा आपने। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया डी डब्ल्यू, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रोटेशनल फोर्स विच इज द टॉर्क, the rotational force is the torque into d theta. Now, this is your small amount of work done when it rotates. If we integrate both the sides now, and therefore you need to know integration. So, अगर मैं छोटे छोटे एंगल d theta करता जाऊंगा, from for example theta is equal to 60 degree to 30 degree, then how much work is being done? The work done will be given by q b 2l sin theta d theta. इसका इंटीग्रल यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द इंटीग्रल, क्यू बी टू एल, इसका इंटीग्रल इज माइनस कॉस थीटा डी थीटा, राइट? सो दिस इज माइनस क्यू बी टू एल कॉस थीटा इज द वर्क डन। ओके, सो द वर्क डन इज दिस मच, ये आपका वर्क डन आ गया। सो तब पहले हमने निकाला वर्क डन टू टर्न इट बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट डी थीटा, इंटीग्रेशन से हमने थीटा 1 टू थीटा 2 निकाल लिया। तो मैं इसके ऊपर ये भी लिख सकता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल है, मैं थीटा 1 पे था और थीटा 2 पे चला गया, तो आई विल राइट इट एज थीटा 1 टू थीटा 2। सो ये मॉड्यूलस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो दिस इज माइनस क्यू बी टू एल कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस क्यू बी टू एल कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, सो दिस विल बिकम इक्वल टू
QB2L cos theta 1 minus cos theta 2. This is the work done to make a dipole move from an angle theta 1 to theta 2 under the influence of a torque. Okay. ठीक है जी. And as you can see, the sign has come out to be negative. And this work done on the dipole by the external magnetic field gets stored in the dipole as a potential energy of the dipole. So here, this is also the potential energy of the dipole, one and the Okay. same thing. Hmm. Okay, generally people leave it here. Negative sign रखना prefer करते हैं and they write it as U is U or W, one and the same thing. जो भी work done होता है वो conservative होता है, वो गुम नहीं हो जाता कहीं पे, Hmm. वो पड़ा रहता है inside the dipole, gets Yes, stored sir. in the dipole. हाँ. गुम नहीं हो जाएगा वो वर्क डन. जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हो, आपने वर्क डन करा स्प्रिंग को दबाने में, आप जैसे ही छोड़ोगे स्प्रिंग वापस आ जाएगा. इसका मतलब आपने जो वर्क डन करा था वो स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर्ड थी, Hmm. गुम नहीं हो गई. कि आपने फ्रिक्शन पे काम करा तो आपका पेट्रोल तो खत्म हो जाता है ना, वापस नहीं आ सकता. Yes, sir. तो दो तरह की फोर्सेस हैं, एक डिसिपेटिव और एक कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? उनको लगाने पे जो वर्क होता है वो स्टोर्ड रहता है, लेकिन फ्रिक्शन टाइप की फोर्स जो होती है वो जब लगती है तो वो वर्क डन खत्म हो जाता है, वो वापस हाँ. नहीं आता वो. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन का, जो नेगेटिव साइन में हमने यहाँ डिराइव करा है, इसके अंदर व्हाट दे डू इज दे राइट क्यू, रिमेंबर, इज क्यू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. प्लीज डोंट टेक इट एज अ चार्ज. ये हर जगह एम लगा रहा हूं दोबारा मैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन दैट वी आर डीलिंग विद अ पोल स्ट्रेंथ, Full strength. नॉट विद चार्ज स्ट्रेंथ. चार्ज Yes, नहीं sir. पढ़ रहे हम. राइट, सो U इज इक्वल टू 0 डाल दो. अब आप इसको लिखते कैसे हैं फाइनली? माइनस U, सॉरी माइनस जो QM इंटू 2L है, जो आपका ये वाला पार्ट है Q इंटू 2L, ये बन जाता है Hmm. आपका M. दिस इज योर M. Hmm. और जो बाकी पार्ट है उसको लिख लेते हैं डॉट B, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली मैंने पूरी डेरिवेशन करके पूरा सॉल्व ही कर दिया है. बट अगर आपको बोले कि व्हाट इज द potential energy of inside a magnetic dipole, when the magnetic dipole is making an angle of theta with the magnetic field, the potential energy at any theta is given by the dot product of M and B. ये साउथ टू नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तो आपको डायरेक्शन दे रखी होगी. सो द पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने यहाँ पे डिराइव करा ऊपर, ये वाला वर्क डन का एक्सप्रेशन, सिर्फ Yes, sir. डिड यू सी दैट वी गॉट अ थीटा? फिर मैंने बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन करी है, हाँ. Yes, sir. है ना? तो ये जो वैल्यू है इनडेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें कांस्टेंट जीरो ही आ जाता है. U इज गिवन बाय माइनस, इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये मैंने बाद में लिखे थे. अगर मैं Hmm. इसको इंटीग्रेट कर दूं और डेफिनेट इंटीग्रेशन ना लगाऊं, इसी को इंटीग्रेट करूं और डेफिनेट इंटीग्रेशन ना लगाऊं, तो ये फॉर्मूला ये है. सो M डॉट B मतलब U is dot product of magnetic moment and B, Hmm. scalar product Yes, sir. with a minus sign. तो अगर आपको मालूम है कि मैग्नेट इस समय एंगल थीटा बना रहा है, दिस इज योर मैग्नेट and it is making some angle with the B, any angle 60 डिग्री, एंड यू से बताओ जी इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है. तो आप बोलोगे ठीक है, आपने मुझे M बता दो कितना है इसका. तो M ले लिया आपने. मैग्नेटिक मूवमेंट आपने बोला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बता दो मुझे. M इज गिवन बाय QM इंटू 2L फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो आपने बोला ठीक है, बी भी बता दो वेक्टर की फॉर्म में. बी भी दे दिया आपको IJK के अंदर. तो आपने बोला द U विच इज स्टोर्ड इज गिवन बाय माइनस M डॉट B. डॉट प्रोडक्ट ले लिया, आंसर जूल्स. So whatever work Okay. is being done by the torque to rotate it is getting stored in the dipole in the form of its potential energy. Hmm. ठीक है. अब न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके, बट बेसिक कॉन्सेप्ट
should be clear in your mind. And if you can notice, since it is minus sign के साथ आता है ये, so U is scalar. Yes, energy is always scalar. It has nothing to do with vector. Minus M dot B, and therefore, if you notice M, which is a magnetic moment, and dot B, तो मॉडुलस स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा रहा हूँ cos थीटा, ये मेरी एनर्जी आ गई. Yes, sir. Now theta is equal to 0 will mean this will become minus M into B. Cos 0 is 1. तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव होगा. So this will be U minimum. Yes. But if you take theta is equal to 180 degree, and remember potential energy हर system least चाहता है, तो definitely you want that theta should be 0 degrees because you get a minimum energy there. But if you keep theta is equal to 180, बिल्कुल torque की तरह, torque theta is equal to, तो U max हो जाएगा क्योंकि this will be minus M B cos of 180 degree is equal to plus M into B. Cos 180 तो सॉल्व कर लिया, -1 आ गया. -1 into minus will become plus. This minus and this -1 will become plus. So cos तो लिखने की जरूरत ही नहीं, अब cos 180 तो -1 होता है, तो देखो प्लस आ गया. So this is U max. And this is not the situation in which a magnetic dipole wants to stay. A magnetic dipole would always love to stay here because it is a least energy. अगर एक बॉल जो है आप उसको यहाँ रख दोगे आसमान पे, it has a potential energy stored in it. Whatever work you did to bring it up is stored in it, right? But would the ball like to stay here, or if you leave it, will it like to go back? It would like to go back. Go back. Why? Because it doesn't want more potential energy. Yes. Every system, मैं आपको बोलता हूँ ये, this is my a bowl. If I leave a ball here, would it like to go here or would it like to stay here? It would like to go down. So systems want to have least potential energy. So similarly, this is the case of least potential. A dipole wants to be in this condition, where the angle between the, just for example, this is south to north, and M की direction ये है, and magnetic field is in this direction. ठीक है? Okay. The angle between them, between M and B right now is 180 degree. Very happy to stay here. Yes, sir. Very, very happy to stay here. That by least energy है मेरी यहाँ पे. I'm very, very, very stable. Yes, sir. ठीक है. ठीक है? Okay. ठीक है, I will just stop here now. Let's continue to do this discussion. And my humble request to you is please don't depend on these notes. Everything is available. Please open the book. What you need to do is discipline and time. That's all. कागज, you do Google search, you will get thousands of papers यार. Definition की कोई कमी नहीं है, मिल जाएंगे. बुक में लिखे हुए हैं, मतलब you name it, it is available. ऐसी बात नहीं है कि it's not available. Yes, sir. ठीक है, तो मतलब अपनी चाह को बढ़ाओ, रास्ता मिलता है. ठीक है, we will continue this discussion in the evening and do some numericals on this. Okay, sir.